जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। नूतन वर्ष अभिनंदन। हमको नहीं चाहिए प्रकाश, हम प्रकाश स्वरूप है। ना ना, I'm good, अंकल जी, विशेष तकलीफ ना ले। I remember 3 years ago, इसी करीब इसी समय 20 or 4 years ago maybe. I think that's when you had started, Jyoti, and you were like joining. Um, I was on the other side, and look, we've come along like a personal gathering उस समय. So I actually remember that exact conversation, maybe dinner, lunch, yeah, बाद में we can go over it. But it brings so much joy. यहाँ पे फिर से हम लोग सबसे जुड़े हैं. The परिवार is growing. गुरु कृपा से गीता में रुचि बढ़ रही है. धीरे धीरे हम 13वें अध्याय in the middle of it. What I would like to start wishing Happy New Year to everyone is 17वें अध्याय में 17th chapter, श्रद्धा त्रय विभाग योग में तीसरा श्लोक भगवान कहते हैं. सबको सुनाई दे रहा है ना? श्रद्धामयो अयम सर्वस्य. ये जो सारा जगत है, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयो अयम पुरुष यो यत् श्रद्धस्स एव सः. So hopefully this helps set the context for how we start and how we receive and how we look at and how we end this year. Sattva anurupa sarvasya श्रद्धा भवति भारत. सत्व जैसे जिसका सेटिंग होता है, just to translate it, however we're set, however we choose to be set, यहाँ पर यहाँ पर मनुष्य जन्म में इस देह में, this is the only place, this is the only way where we get to choose how do I want to show up, how do I want to receive. जो दिखाई दे रहा है सामने, उसमें मेरे को क्या देखना है. जो कोई कुछ कह रहा है मेरे लिए बात, उसमें मेरे को क्या सुनना है. What do I want to pick up, what do I ग्रहण क्या करना है. तो अपना सेटिंग जैसा हो, जैसे और आगे चल के तो श्रद्धा त्रय विभाग सात्विक राजसिक तामसिक. श्रद्धा मयो अयम पुरुष, ये पुरुष जो है, मतलब ये पुरुष मतलब खाली मर्द नहीं, इन द ह्यूमन बॉडी. यो यत् श्रद्धा स एव स. I know we're in the 13th chapter. What I'm talking about is the 17th chapter, but this is in reference to also the New Year's. Now, Madhu, I forgot to bring my water bottle. So, for some reason I have to try. Give one moment. So I would encourage everyone, ये शुरुआती है, to examine our setting. The default setting is सात्विक. हम लोग जब जन्म में थे, सात्विक सेटिंग, डिफॉल्ट सेटिंग समझते हैं. इसे फैक्ट्री सेटिंग रीसेट करते हैं. कोई बिगड़ गया घड़ी, उसकी लेके गया या क्लॉक, तो उसको सुधार देना. आईफोन, iPad करते हो, the only thing we can do is set it to the factory setting. और फिर से जैसे बनाया था वैसे शुरू हो जाकर चलेगा. But you lose all your data. अगर मंजूर हो तो sure you can use this device. ऐसे ही if we are prepared to lose all our data, जो भी इकट्ठा किया है, जो संस्कार इकट्ठा किए हैं, इस जन्म के नहीं, पहले जन्मों के भी है ना, इस जन्म के तो सबसे ज्यादा. If we're okay with that, but restore my setting to the original goodness, sattva anurupa, sarvasya. Everybody has a shot. Everyone, sarvasya. श्रद्धा भवति भारत, जिसके सबके लिए ये पॉसिबल है, संभव है. क्योंकि श्रद्धामयो अयम पुरुष यो यत् श्रद्धा स एव स. As you believe, so you will be. As I think, so I become. इतनी सिंपल बात है. बुद्ध भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा, जीसस क्राइस्ट ने कहा, सबों ने कहा कि ultimately where I end up depends on where do I want to go and what choices do I make. So we are at a crossroad. 2/3 हो गई है भगवद गीता. So gravitational में मेजॉरिटी आ गई है ना. we're past 2/3. 18 अध्याय में से 12 हो गए, 13वें में है.
So we do have the choice, we do have the control. We can take it in the direction we want. So अपना ओरिजिनल सेटिंग है ट्रूथ, गुडनेस एंड लव। जैसा बच्चा का जन्म होता है, सत्य में सेट है। कोई अभी जो एक ओंकार निर्भव है ना, और निर्भय है ना, फियरलेस तभी होते जब हम सत्य के साथ होते हैं। तो बदलने की जरूरत नहीं, जो है जैसा है वैसा है। Because the original is the best, the truth is the best, and it is the goodest, if I might say, using a toddler's language. That's the best, the best. So truth, goodness, and उससे भी बढ़कर love, प्रेम। यदि प्रेम का फिल्टर हो सबके लिए, then there's no question about प्रेम की छलनी से सबको, तो फिर सब शुद्ध ही शुद्ध है। So again, this is a reminder for myself. This is a reminder for all of ourselves. अभी मौका है रीसेट करने का। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि ये स्क्रू ड्राइवर लिया इधर में, इतना ही काम करना इस जन्म में, सच्ची बात है, कैसे कहो, और इतना ही काम करना ये सारे जन्म में। आंखें खोल सकते हैं ताकि देख भी सकते हैं कि कितना बड़ा या कितना छोटा काम है। ये स्क्रू ड्राइवर है मेरी अंगुली, और ये स्क्रू है, इसको इधर से इतना घुमाना है बस। अपना इसको इसको खाली इतना घुमाना है, आधा घुमाना है, तो काम बन सकता है खाली फैक्ट्री सेटिंग के लिए। और उसके लिए लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। स्क्रू ड्राइवर दिया है हाथ में, अब चॉइस करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा मेहनत, माथापच्ची, बहुत उपवास तपास, व्रत, दान धर्म, उल्टा टंगना, ये करना वो करना नहीं करना है, पर ढंग से अंदर में जाकर के थोड़ा सा घुमाना है, तो ये एकदम हौसला फिट हो सकता है। उसके लिए शांत होना पड़ेगा, सात्विक चॉइसेस करने पड़ेंगे, सात्विकता की ओर, फिर आसान होगा ना। तो with that suggestion, with that request, with that reminder for myself more than anyone else, हम लोग 13वें अध्याय में थे। पिछली बार मैंने कहा था कि when we meet, I don't know if you remember, जब हम लोग मिलते हैं in person, so we will elaborately decode that कि ये सब क्या है करके ना। saying कि अभी जो आज का श्लोक होगा 28, 19, 29वां, प्रकृति है ये सर्वकर्माणि, कहते कि ये सब प्रकृति ही करती है। यह पश्यति सदात्मानम, और ये जो देख सकता है कि ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब अपने आप हो रहा है, सब प्रकृति कर रही है, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। जो भी है, गाली दे रहा है, कोई हार पहना रहा है, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, काम बन रहा है, नहीं बन रहा है, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, मेरे साथ, अपनों के साथ, दूसरों के साथ, या कष्ट हो रहे, जो भी हो रहा है, मेरे को कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं करता हूँ। लेकिन मेरा देखने का ये सौभाग्य, दुर्भाग्य, जो भी भाग्य है कि आई गेट टू विटनेस इट, आई गेट टू वॉच इट, आई मस्ट, आई एम कंपेल्ड टू, आई एम हियर, आई हैव टू वॉच इट, बिकॉज आई एम इन दिस बॉडी दैट इज लुकिंग एट इट। एंड अगर मैं अंदर से अपनी आंखों से देख रहा हूँ, तो जो दृश्य अंदर में आ रहा है वो मेरे को सहना पड़ रहा है, मेरे को झेलना पड़ रहा है। कोई अगर अंदर में बैठकर सुन रहा हूँ, कोई बाहर से गाली दे रहा, कानों से आ रहा, तो मेरे को पक्ष लेनी पड़ रही है। और कोई प्रशंसा कर रहा है तो वो भी लेना पड़ रहा है। ना मेरी प्रशंसा हो रही है, ना मुझे गाली पड़ रही है। वो खाली मैं देख रहा हूँ, साक्षी भाव से, विटनेस भाव से, मतलब तटस्थ भाव से। सो दिस इज वेयर वी विल डाइग्रेस टुडे, बेस्ड ऑन लास्ट टाइम जो मैंने कमिट किया था कि वी विल अनपैक इट as a tatastha. This is a Sanskrit word which is also used in Marathi, और शायद हो सकता है हिंदी में भी हो। तट मतलब गंगा तट, जमुना तट, समुद्र तट कहते हैं ना, तट मतलब किनारा, सीशोर। स्थ मतलब ग्राउंडेड, एंकर्ड, स्थित। तटस्थ मतलब स्टैंडिंग ऑन द बैंक, रिवर बैंक और सी शोर। सो सी शोर पे या नदी किनारे पे क्या थोड़ा पानी होता है, थोड़ा मिट्टी होती है, कीचड़ होता है, पूरा पानी भी नहीं है, पूरी मिट्टी भी नहीं है। वहां पर फंसे तो हो सकता है अंदर भी जा सकते हैं, पैर गंदे भी हो सकते हैं, पैर साफ सुथरे भी नहीं होते, और पूरे गीले भी नहीं होते। और दोनों का अनुभव होता है कि थोड़ा गीला भी लग रहा है, थोड़ी मिट्टी लग रही है। अगेन यू कैन ओपन योर आईज इफ यू वांट, कैसे कि कोई ध्यान नहीं कर रहे हम लोग, ताकि इस पर विचार कर सके। तो जीवात्मा जो है, इस सिद्धांत है, जैसे हमारे सनातन धर्म में, जिससे सभी धर्म आते हैं इंक्लूडिंग हिंदू धर्म, सिख धर्म, सभी धर्म, एक तो केवल अद्वैत सिद्धांत है ना, निर्गुण निराकार अद्वैत सिद्धांत कहते हैं कि बस एक है, अभी जो हमने सुना एक ओंकार जैसे। और उसके दूसरा एक जनरली स्पीकिंग कहते हैं वैष्णव सिद्धांत है। दे आर नॉट अपोज टू ईच अदर, they are holding the same truth but looking at it differently.
मैंने एक ही आदमी को दो तरफ से दिखा सकते हैं। मेरे को भाई अंकल जी यहाँ पे बड़े उम्दे लग रहे, सामने से दिख रहा, आंटी जी को शायद कुछ अलग दिख रहे होगे पीछे से बैठ रहे। पर्सन इज द सेम बट वर लुकिंग एट इट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट, बट ही इज द सेम पर्सन। ऐसे ही केवल अद्वैत सिद्धांत जिसे प्रमुख आचार्य शंकराचार्य जी ने कहते हैं, उपरटा के जिसने कहा निर्गुण निराकार है, अल्टीमेट रियलिटी फाइनल जो है वो दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, उसको देख कुछ नहीं कर सकते हम लोग, बियॉन्ड और ट्रांसेंडेंटल है, और उसमें कुछ गुण भी नहीं है। और मेन बात में सगुण साकार नहीं है उसमें, नॉट अ पर्सन, इट डज नॉट हैव अ पर्सनैलिटी इफ यू विल। और उसके उस उल्टा जो होता है, जो द्वैत सिद्धांत है कि ना देयर इज अ फॉर्म, उसका रूप भी है, नाम भी है, गुण है, ये दो तो सुना है ना ज्यादातर करके। सो so इनमें फिर अलग अलग, as you study these, if you make it your own, अपने प्रोसेसिंग से, अपने तत्व से, लॉजिक से, द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत अभेदाभेद करके, essentially if you consider the sun for example, सूर्य है, सूर्य की आभा है जिसे तनुभा कहते हैं, तनु मतलब शरीर, कि उसका सूर्य प्रकाश जिससे सारा आसमान भरा हुआ है, और जिस पर सूर्य प्रकाश पड़ता है, मेरे हाथ पे यहाँ पर सूर्य प्रकाश पड़ा, ये हाथ भी है। सो एक तो सूर्य नाम का कोई गोला है ना, लाइक एक्चुअली हैज अ शेप, एक्चुअली हैज हीट, सनशाइन एंड ग्रेविटेशनल मास इन इट, है ना। सूर्य में उष्णता है, सूर्य में प्रकाश है, सूर्य में आकर्षण शक्ति है, ये तीन बात है। तो एक्चुअल वो गोला है, डिस्क है, स्फीयर है, और उसके बाद में यहाँ सभी दिशा में उसका खाली सूर्य प्रकाश मात्र है। सारे सूर्य प्रकाश के कण कण में, एवरी फोटॉन में भी वो तीन गुण है। हर एक छोटे से छोटे सूर्य के कण में भी उष्णता है, थोड़ी सी गर्मी देती है, जब धूप में बैठ खड़े होते हैं तो प्रकाश देता है थोड़ा, और उसमें अपने अपने हिसाब से उसकी आकर्षण शक्ति देती है। तो जैसा सूर्य में उसके वैसे ही सूर्य प्रकाश में। और अगर मैं किसी कागज को या हाथ को रख दूं सूर्य प्रकाश में, मैं तो न सूर्य हूँ न सूर्य का प्रकाश हूँ, लेकिन इसमें भी उष्णता आने लगती है, क्योंकि उस है ना उस पर गिरा इसलिए, और ये भी चमकने लगता है, हाथ या कागज, और ज्यादा रखे तो जल भी जाता है, तो उसके गुण उसमें भी आ जाते हैं, ये तीनों भी उसमें आते हैं। तो ये जो एक विशेष सिद्धांत है अचिंत्य भेद अभेद करके, आइडेंटिटी इन डिफरेंस, तो कहते हैं कि भगवान दोनों है, सगुण साकार निर्गुण निराकार दोनों है। अगर भगवान है तो क्यों नहीं हो सकते, कि वो जब चाहे जैसे चाहे वो सगुण साकार भी हो सकते हैं, वो फॉर्मफुल भी हो सकते हैं, फॉर्मलेस भी हो सकते हैं, उनमें गुण है भी और नहीं भी है। दीज आर डिफरेंसेस इन हाउ वी परसीव। उसमें कहा कि फिर तो वो जो अल्टीमेट भगवान है उसका अलग नाम कोई शिव दे दे, कोई आई कॉल हिम कृष्ण ने मेरे लिए, लेकिन ऐसा आग्रह नहीं, आप शिव कह सकते, गुरु कह सकते, जिस नाम से अच्छा लगता है उस नाम से कहे। um, उसकी तीन प्रकार की शक्तियां कही है। I'm trying to get to this point of the 13th chapter कि what is all this about। ये जो 13 अध्याय, ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम का 13 अध्याय जो है, जिसमें बता रही थी कि there is the field of activity and there is the knower of the field, जैसे खेल और खिलाड़ी, अथवा तो the spectator, वो खेल देखने जाते हैं स्टेडियम में, फुटबॉल, सुपर बोल, we're not playing and we're not even the game, we're neither the game nor the field nor the player, we're just watching it। We get excited कोई जीत रहा हो तो, or we get depressed or we get angry, और उससे वैसे तो कुछ नहीं हो रहा है, मेरे को दुख नहीं रहा, लग नहीं रहा कुछ नहीं, फिर भी I still get excited still। या तो इलेक्शन में अपनी पार्टी जिस किसी में हो, बिकॉज उसके साथ तादाद में हो जाए थोड़े समय के लिए, दिस इज द वर्ड इन तादाद में, तद आत्म, जैसे एज इफ फॉर दैट मोमेंट आई एम दैट, आई बोरोड दैट आइडेंटिटी, उतने समय के लिए उसको मैंने अपना समझ लिया, मेरे को उसका समझ लिया, एंड वी बिकम वन। तो जब तक गेम चल रहा है उसके साथ हम भी उछल कूदते हैं उसके थोड़े समय के लिए, उस दिन तक तादाद में हो गया है ना, घर जाते ड्राइव समय तब भी। ऐसे ही यहाँ पर जो ये जीवात्मा इसमें आ गया या प्रकृति में, इसके साथ तादाद में हो गया, इसके साथ आइडेंटिफाई कर लिया, वास्तव में न्यूट्रल है, वास्तव में इसका कोई संबंध नहीं है। ये जो आज का जो श्लोक था, प्रकृति एव च कर्म सर्व कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वश, ये सब कोई दूसरा कर रहा है, जरा पश्यति आत्मानम, ये सब बराबर जब ढंग से समझ आती है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे कारण नहीं हो रहा, मेरे लिए नहीं हो रहा, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, पर आई सो क्लोजली आइडेंटिफाइड माई सेल्फ, इतना पक्का समझ लिया मैंने अपने आप को, ये मैं हूँ, बस ये मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ।
इसको जुड़ के जो ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरे है, बस इतना मैं मेरा हो गया, वह नहीं है। मैं एक्चुअली तटस्थ हूँ, न मैं नदिया में हूँ न मैं जमीन पे हूँ, मैं बीच पे खड़ा हूँ। तो ये तटस्थ है कौन और आ गया कहाँ से, ये बताने के लिए मैं ये वाक्य अनपैक कर रहा हूँ, जो थियरी है सनातन धर्म की। तो कहते हैं कि जो भगवान है, या तो निर्गुण निराकार समझो अपनी रुचि अनुसार, या सगुण साकार समझो, जो समझना है समझो, लेकिन भगवान कह दो उसको अभी के लिए, खाली इस सेशन के लिए भगवान कह दे, है ना। अथवा तो जैसे मैं कृष्ण कहता हूँ, सो फ्रॉम हियर ऑन आई विल यूज द वर्ड कृष्ण, द नेम कृष्ण, यू कैन कॉल हिम व्हाटएवर, कोई मेरे को मुसीबत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली वो सब मेरा कृष्ण ही है। दैट्स द ट्रूथ। सो असंख्य शक्तियां है। जैसे आप हम में से जो यहाँ पे बैठे, कोई बोलने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, कोई ड्राइंग की शक्ति है, कविता लिखने की शक्ति है, गाने की शक्ति है, ड्राइविंग की शक्ति है, सोने की शक्ति है, खाने की, पचाने की, कुक करने की शक्ति है, अलग अलग प्रकार की है ना। तो उसमें से ऐसे अगर हम में इतनी है तो उसमें कितनी होगी, है ना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, ताको बहुविधि कहे सब संता। अलग अलग प्रकार से संतों ने अलग अलग प्रकार से कहा, फिर भी नहीं कह पाए। सो जनरली अपने खोपड़ी में तीन बातें बैठती है ना। आदमी लोग तो जानती है, ग्रोसरी लिस्ट में बनानी पड़ती, तीन से ज्यादा लाने को बोला तो वो तो टैक्स, कैन यू टैक्स मी, चौथी बात नहीं याद में रहेगी। तीन बातें तक होती, उसके बाद फ्यूज, फ्यूज हो जाता है ना। सो तो इसलिए उन लोगों ने हमारे पर कृपा करके तीन ब्रॉड कैटेगरीज कैटेगराइज किया भगवान की शक्ति में से, ब्रॉड कैटेगरीज। देर आर थ्री कैटेगरीज एंड वी, यू, आई आर वन ऑफ दोज, and whatever we think we are is one the other. That it's important, it's very very related to this chapter only. That's why I'm bringing it up now. उसकी पहली एक शक्ति है बहिरंगा शक्ति, आउटवर्ड, प्रोजेक्टेड आउट, बाहर की, बहि अंगा, है ना। बाहर, जैसे मैं बाहर से देख कर जैसे रहा हूँ अभी, मैंने ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा रंग है, इतनी कद है, ऐसे बाल है, जो भी होगा, इतना ही नहीं हूं मैं। देर इज जस्ट सो मच मोर टू मी, देर इज नो कंपैरिजन। ये जो दिख रहा हूँ उससे ज्यादा हाउ मच देयर इज टू मी, जस्ट इवन एज अ मैन, एज अ ह्यूमन, और यू फॉर दैट मैटर। लेकिन ये मेरे बाहर का जो भी मैं कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो सकता हूँ, ये बहिरंगा शक्ति, जिसको आमतौर पर हम लोग प्रकृति कहते हैं, निसर्ग कहते हैं, नेचर कहते हैं ना। प्रकृति में जो हो रहा है वो, ये बहिरंगा शक्ति। उसके अंदर की जो है, सबसे अंदर वाली, उसे नेचुरली अंतरंगा शक्ति, जिसे स्वरूप शक्ति भी, जैसे बहिरंगा को कहा प्रकृति, जो हम लोग समझते हैं प्रकृति में ये हो रहा है, प्रकृति कितनी सुंदर है, नेचर में ऐसा होता है, वैसा होता है, बिगड़ता है, बनता है सब, ऐसे अंतरंगा शक्ति उसकी, जो स्वरूपा शक्ति, मतलब अपना रूप, स्वरूप, उसका अपना रूप। जैसे मेरे अंदर में क्या है, मेरे मैं जानता हूँ, मेरे विचार क्या है, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरी रुचि क्या है, ये सब मैं जानता हूँ, आप अपने जानते हो कि मेरा, दैट्स हाउ आई एम। हम लोग कहते हैं आसानी से, आई डोंट नो, दैट्स हाउ आई एम, दैट्स, आई डोंट लाइक इट, आई लाइक, दैट्स हाउ आई एम। व्हाट डू यू मीन दैट्स हाउ आई एम? दैट्स व्हाट आई मीन, दैट्स हाउ आई एम। है ना। ऐसे वो, दैट इज स्वरूपा शक्ति, अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा इज इनसाइड, बहिरंगा इज आउटसाइड, बहि इज आउटसाइड। सो अंतरंगा जो स्वरूप है, और बहिरंगा है जो प्रकृति है, वो दोनों के बीच में जो है मार्जिनल पोटेंसी, मार्जिन समझते हैं, जैसे हम पेपर पे जाती है, इधर का है ना उधर का है, बीच में मार्जिनल एरिया कहते हैं, उसको कहते हैं तटस्था शक्ति, जिसे जीव शक्ति कहते हैं, जो हम है, आ, कि वो पूरी अंदर की भी नहीं है, पूरी बाहर की भी नहीं है, वो बीच में रह करके एक्चुअली बिलोंग्स टू द इनर, एक्चुअली एवरीथिंग इज अ प्रोजेक्शन ऑफ द इनसाइड। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये जो बात कर रहा हूँ, एक तो शब्द आ रहे हैं और विचार आ रहे हैं, और ये कुछ एक्स्ट्रावेगेंट हैंड जेस्चर्स भी हो रहे हैं, जो भी, ये सब कहाँ से आ रहा है ओरिजिनली? ऐसे ये आने से पहले पहले कहाँ अंदर आया ना। मेरे मेरा विचार होगा तभी तो मैं मुंह से बात कर पाऊंगा, और ये बाहर तक आवाज तभी आएगी जब पहले अंदर से प्रोजेक्ट करूंगा। जो भी हम करते हैं, जो भी होता है, कुकिंग करे, ग्रोसरी करे, सोए, पहले अंदर में होता है, उसका खाल बाहर थोड़ा सा हल्का सा मैनिफेस्टेशन बाहर में दिखाई देता है, अंदर में जितना है उसका थोड़ा सा बाहर प्रकटता है। इसलिए बहिरंगा शक्ति भी उसकी इंटरनल पोटेंसी का मैनिफेस्टेशन है, तटस्थ शक्ति भी। सो जैसे दूर दूर तक नहीं जा सके, यहाँ के लोग सुन सके, बाहर वाले ना सुन सके, सो यहाँ बीच में मेरी आवाज यहाँ तक ही है। सो यू कैन इमेजिन दैट समथिंग दैट कैन फार रीचिंग आउट, दूर तक जा सके, दैट्स एज इफ प्रोजेक्टेड आउट,
ये भगवत गीता के 7वें अध्याय में शुरू में पहले 3-4 श्लोकों में ये बातें आती है। अष्टधा प्रकृति आपके यहाँ सलील भाई, आपके यहाँ जो हुआ था 7th chapter was at your place, that's when we discussed भिन्ना प्रकृति भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। उस समय नवरात्रि चल रही थी, उन्होंने कहा ये अष्टभुजा देवी की जो प्रकृति की हम लोग पूजा करते हैं, ये 8 बातें गीता में आती है। भूमि, जल, आप, वायु, ये मेरी बहिरंगा प्रकृति है। तो भगवान कहते हैं जीव भूत महाबाहो येदम धारयते, इससे सुपीरियर जो क्लोजर टू मी is superior to me, and the closest to me, the one that is inside me, is the greatest, is the best, because that's God. उसके अंदर की जो पूरी शक्ति है वो पूर्ण रूप से है। तो ये बहिरंगा शक्ति जो है, जिसमें ये पृथ्वी से एनी सॉलिडिटी, लिक्विडिटी, फ्लूइडिटी, स्पेस, लाइट, ये जो भी एनीथिंग दैट शब्द स्पर्श रूप रस गंध, एनीथिंग दैट कैन बी फेल्ट, टच्ड, सीन, दैट इज जस्ट द आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन। उसकी कोई कीमत नहीं है एज इस सिद्धांत में। उसकी न कोई कीमत है, उससे न कुछ होता है, जड़ है उसका, मतलब इनर्ट है, अपने आप को उठा नहीं सकता, उसको अपने आप की चेतना नहीं है, अपने आप को नहीं समझता पत्थर, कि मैं पत्थर हूँ, मेरे सिर पे खोपड़ी में मारा तो फूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, उधर ही पड़ा रहता है जैसे ना। लेकिन उसको जब चेतन देखता है, चैतन्य जब उस पर पड़ता है, किसी की दृष्टि से, किसी के हाथों के स्पर्श से, तब उसमें उस चैतन्य निर्माण होता है। तो ये चेतन जो है, द कॉग्निटिव पावर जो है, समझने की शक्ति जो है, अकल जो है, बुद्धि जो है, वो बीच वाला है, जो हम है, क्षेत्र ज्ञ जो है ज्ञान स्वरूप है। The one who observes and understands, the one who sees and realizes what it is, the one who hears and understands what is being said, ना। क्योंकि अभी अगर यहाँ पे किसी कोई मुर्दा बैठा होता था, उसको यही सारी बातें, इसका कोई मतलब नहीं होता था, जैसे बैठा था वैसे पड़ा रहता था, है ना। और उसी में जान आ गई तो सारी बातें समझ में आ रही। तो ये जान जो है, वो जान हमेशा रहती है, शरीर रहे न रहे, ये ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति हमेशा रहती है। किनारे के बाद वो बदलता रहे, लेकिन वो किनारे पे जो है तटस्थ जो है। सो इसलिए यहाँ पे कहा कि ये जो इस श्लोक में ये जो देख पाता है, समझ पाता है, इस पर विचार करके कि हे वेट अ मिनट, आई एम नॉट दैट, आई डोंट वांट टू बी टू बिलोंग टू फ्लोन इनटू द रिवर। इस संसार को, जो संसार सरिता कहा है, नदिया का है, उसमें मेरे को बह नहीं जाना है। ऐसे ये जो समझ डिस्टेंस कर पाता है अपने आप। तो भगवान की अंतरंगा शक्तियों में भी 3 प्रकार की शक्तियां हैं। बहिरंगा शक्तियों में भी अगेन इट गोज इन थ्रीज बिकॉज दैट्स ऑल वी कैन हैंडल। बहिरंगा शक्तियों में भी 3 है। और तटस्थ जो हम जो है, वो डिपेंड्स ऑन विच वे वी गो, सात्विक, राजसिक, तामसिक, जो मैंने आज के सत्र में सबसे प्रारंभ में कही। हाउ डू आई चूज टू रिसीव इट? अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ, इसको शक से, इसको स्केप्टिसिज्म से, सिनिसिज्म से, ये तो हो ही नहीं सकते, झूठी बातें, बकवास है, करके भी कर सकते हैं, या तो हो मगर वो ये तो भगवान से निर्माण रहा, ऐसा भी हो सकता है। या तो फिर ओके, आई एम ओपन माइंडेड, लेट मी थिंक अबाउट दिस व्हाट वाज सेड एंड लेट मी मेक इट माय ओन एंड आई गो होम, आई कंसीडर इट और से। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी रिसीव इट। या तो किसी की ओर देख रहे, किसी का कोई बिहेवियर होगा, कोई दिखाई दे रहा होगा, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है, हाउ डू आई चूज टू रिसीव इट? ये जो बीच में वाला जो है, मतलब तुम जो हो, मैं जो हूँ, वी आर एंडाउड विद, गिफ्टेड विद, तो बहुत बड़ी देन हमें मिली है, क्या? न्यूट्रलिटी की। वी हैव बीन मेड न्यूट्रल, वी हैव बीन केप्ट न्यूट्रल। इफ आई चूज टू गो अप द, जमीन पे जाना है तो मैं ड्राई लैंड पे रह सकता हूँ, नदिया में जाना है तो मैं गीला होकर बह भी जा सकता हूँ, कहाँ का तितर बितर हो जाता हूँ। What do I choose to do? And today we're standing at that, right? In this body, we're standing at that. How do I choose to be? How do I want to be? इसलिए यहाँ पर भगवान ने करा है कि you have that option. You are actually neutral. You can remain neutral, and you will in fact, फिर से मृत्यु के बाद फिर से हम न्यूट्रलिटी को ही जाने वाले हैं। इसके बाद में फिर से अच्छा बुरा हम तो भूल जाएंगे, कौन थे, कहाँ के थे, गरीब थे, स्त्री थे, पुरुष थे, अमीर थे, कितना पैसा था, एक टांग थी नहीं, आंख फूट गई थी, कुछ नहीं, बस सब भूल जाने वाले हैं। फिर से न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल से है। जो बच्चा जन्मा था उसको क्या पता था मैं अमीर के घर जन्मा हूँ, गरीब के घर जन्मा हूँ, हिंदू में हूँ, मुसलमान में, कुछ नहीं पता था। न्यूट्रल, ओपन माइंडेड था, उसको जो बताया उसने ग्रहण कर लिया।
ऐसे मृत्यु के बाद भी होने वाला है, कंप्लीट न्यूट्रलिटी में जाने वाला है। तो ना पता नहीं ये वो उसका, यहाँ पे क्यों माथा पच्ची करना, यहाँ पे क्यों फंस जाना। तो सारी मुसीबत इसमें, इसलिए विद एन ओपन माइंड इट इज पॉसिबल एंड it is exhorted that we must return to neutrality and observe in neutrality as well. So just to finish that thought, उसकी बहिरंगा शक्ति में तामसिक राजसिक सात्विक जो हमने सुना था, we've gone through some of it, we'll do more of it right in the next chapter 14th 14वां अध्याय is all about that only, तामसिक राजसिक सात्विक गुणों की जो बात है। और अंतरंगा शक्ति जो उसकी उसमें तीन उसमें भी तीन शक्ति आती है, संदिनी, समवित और आह्लादिनी। ये भगत लोगों के लिए, मेरे वालों के लिए बातें करता हूँ ये भक्ति मार्ग के, कि संदिनी शक्ति वो होती है जो पकड़ के रखने का सामर्थ्य होता है। भगवान की अपनी अंदर की जो सबसे घटिया शक्ति कहलाती है, थर्ड ग्रेड, सबसे लो, इंफीरियर इज व्हाट आई एम ट्राइंग, नॉट घटिया, रॉन्ग वर्ड, द मोस्ट इंफीरियर एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड इज संधिनी, जिससे वो सब पकड़ के रखता है। मतलब अभी शरीर यहाँ पे बाल भी शरीर को पकड़ के रखा है, इम्प्लोड नहीं होने दे रहा, एक्सप्लोड नहीं, ग्रह तारे नक्षत्र यहाँ तक वो खुद को पकड़ के रखता है। हम सबको जो भी निर्माण होता है एक जगह पे, जो स्थित रहने की जो शक्ति है, संधान करना, मतलब शर संधान, जो राम जी धनुष उठाते थे कहते थे शर संधान किया, उठा लिया, पकड़ लिया। ऐसे जहां पर भी स्टेइंग पावर है, जहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स जो घूमते हैं न्यूट्रॉन के अराउंड, एटम्स एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, इसमें करोड़ों करोड़ों टुकड़े है, इसने पकड़ के रखा है टेबल में, जो भी जहां पर भी पकड़ के रखा है ना, सूर्य के सारे किरण से जुड़े हुए, all of the power to hold together is the single same power of the Lord called संदिनी शक्ति। और उसकी जो उससे सुपेरियर शक्ति है, वो संदिनी शक्ति जो पहली वाली की थी, उससे ये प्रकृति निर्माण होती है, द मोस्ट इन्फीरियर, एब्सोल्युटली प्रैक्टिकली ऑफ नो वैल्यू जो उसकी शक्ति है, वो है तो है, सो व्हाट डज इट मैटर, उससे द होल कॉज। हाँ, पर दैट इज स्ट्रांग उसी, क्योंकि हम उसमें फंस गए हैं। दैट इज द स्ट्रांगेस्ट बिकॉज उधर ही ध्यान है, ध्यान ही नहीं दे रहा। अभी मैं बता रहा, अभी इसी सत्र में बता रहा हूँ, कहाँ ध्यान दिया तो क्या पता चलेगा, है ना। वो बाकी जो कि जितने भी मिनट, जब तक अलार्म क्लॉक ना बज जाए अपना टाइमर, तब तक। तो संदिनी में से प्रकृति निर्माण हुई, सारा का सारा संसार उससे निर्माण हुआ। मैं मेरे इसी में आपके संदिनी में, मैं मेरे तू तेरे, ये भी शक्तियां ही है, राइट, जो हम पकड़ के रखी है। Everything that you can touch, see, feel, hear, all of it, everything, galaxies, 14 भुवन, attachments that human beings have, बोलते हैं मेरे पेरेंट्स, इसलिए छुट्टा नहीं है। देखो पकड़ा जाता है कि, तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की जो एक बार मन में इच्छा आ गई, वही वही घुसी रहती है। क्रोध आ गया तो बार बार 20-20 साल बाद नहीं भूलते, उसने ऐसा कह दिया था, फिर है ना। तो और अच्छा लोभ और इतना है, फिर भी चाहिए चाहिए का जो, वो सब का सब। और वैसे फिर भी कितनी सुंदर है प्रकृति। अगर अगेन रिमेम्बर, it's up to us, like how do I choose to see it। मैंने इन्फीरियर तो कह दिया, डज नॉट मेक इट इन्फीरियर। कोई बना सकता है, किसी का बाप बना सकता है ऐसी प्रकृति नहीं, कितनी सुंदर है प्रकृति। एक गार्डन में जो है ये परसिमन आपके नहीं बना सकता कोई, है ना, एक खून का कतरा नहीं बना सकता, इतनी सारी प्रकृति। लेकिन वो तो सबसे इन्फीरियर है, उसके ध्यान भी नहीं, वो कहता है अच्छा है तो है, चलो ठीक है। उसकी छाया मात्र, जैसे हम लोग अपनी छाया की ओर कब ध्यान देते हैं, अरे कितनी सुंदर दिख रही, लंबी दिख रही, मेरे बाल तो ऐसे, उसके बाल ऐसे दिख रहे। छाया की बार कितने देखा है आज तक, कितनी बार देखा अपनी छाया की ओर, बोला अरे तुम्हारी छाया तो लंबी दिख रही है, अच्छी दिख रही है, वो होगी मेरे, आई डोंट केयर, वो आ रही है मेरे पीछे, व्हाटएवर, आ रही है तो आ रही है, ऐसे उसकी है ना प्रकृति जो है। लेकिन सो दैट्स वो संधिनी का प्रोजेक्शन इज दिस, उसकी उससे ज्यादा कई गुना, लाइक 10 टाइम्स, मैं कहने के लिए कहता हूँ, प्रोबब्ली इनफाइनाइट टाइम्स सुपेरियर, उससे श्रेष्ठ जो उसकी नेक्स्ट लेयर इज समवित शक्ति, मतलब दैट्स क्लोजर टू, ये जो बाहर वाली थी उसके अंदर थोड़ी 10 टाइम्स सम विद मतलब प्रकाश, जानना, वेद विद्वान, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जो जिसे जाना जाता है, कॉन्शियसनेस, जिसमें जिसमें अकल होती है, ज्ञान होता है, बोध स्वरूप जो होता है, जिसके लिए बुद्ध ने बोध स्वरूप कहा, ज्ञान स्वरूप जो है वो हम है, उसने कहा। संवेद शक्ति से जीवात्मा बनता है, उसमें जैसे सूर्य के प्रकाश में असंख्य फोटॉन्स है, गिने नहीं जा सकते, ऐसे ही उसके संवेद शक्ति में असंख्य जीवात्माएं हैं, गिने नहीं जा सकते, ऑल ऑफ अस
It's like a lifelet, as a life drop, and life, just a monad कहते हैं. It's a tiny drop of life projecting from you. You are, I am, we all are. And it is filled with nothing but the power to know, the power to understand. जिधर वो गिरे, जब तक मैं आंखें बंद करूं तब तक बाहर कितना भी संसार हो, उसका कोई कीमत नहीं. जैसे मैं आंखें खोल दूं तो वो कितना सुंदर है, या ऐसा कैसा रख दिया है, तुमको बोला था ये वो सब सब समझने लग गया है ना. लेकिन जब तक मैं मतलब मैं आप जो भी हो, वी गिव इट मीनिंग. अभी तो थी अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, या अभी स्ट्रिंग, या अभी जो थियरीज आ रही है उसमें भी है ना कि वी मेक इट रियल. अभी मॉडर्न लेटेस्ट साइंटिस्ट, भैया इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इफ इट इज सीन देन इट एग्जिस्ट. उसको माइक्रोस्कोप के अगर नीचे है, उसको देखा नहीं, अगर नहीं देखा वो है नहीं, इतना यहाँ तक से देखा. द सेम इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज नो वन इज सीइंग इट, इज ऑब्जर्विंग. मैं बातें नहीं बता रहा हूँ, ये पहले वाली जो बातें थी अभी विज्ञान से भी प्रूव हो रही है. तो मतलब जब उसके ओर कोई ध्यान दे, जब कोई ज्ञाता हो, तब जो भी है वो है. अगर है जंगल में तो मोर नाचा, किसी ने ना देखा है ना, वो पता नहीं जंगल भी है, मोर भी है, क्या है, कुछ नहीं, किसी ने कुछ बोल दिया ऐसे. सो जब जब ज्ञानी है तो ही जो भी ज्ञान गम्य जो वस्तु है उसका महत्व है. इसलिए ये प्रकृति जो है, ये सारी प्रकृति मिल के, एंटायर कॉस्मोस, ऑल द गैलेक्सीज इन द ब्लैक होल, उससे कई गुना ज्यादा महत्व एनी वन ऑफ यू. A single person here alive, a single person in this gathering collective here is so far superior to the entire creation. ये मेरी थ्योरी मेरी नहीं है, हमने रखा है, मेरा अनुभव है अवश्य, लेकिन ये मेरा ओरिजिनल माल नहीं है ना. लेकिन अनुभव के पश्चात अपना सबका वही हो जाता है ऐसे. सो इसलिए हमने कहा कितना सस्ते में बेच रहे हैं, कितने ये क्या टुकड़ों के पीछे, ये क्या इतने इसके पीछे खींचे जा रहे हैं. एक क्या कुत्ते की पीछ को पकड़ के, पूछ को पकड़े लथड़े जा रहे हैं, ऐसा वैसा वैसा. इसको छोड़ देते छूट जाए, वह हो गया बहुत समय. और वो कहते फिर उससे भी 100x 100 times सुपेरियर इज हिज इनर मोस्ट एनर्जी, इसकी अंतरंगा स्वरूपा शक्ति, मतलब हिमसेल्फ. और इन तीनों में भी तीन तीन कैटेगरीज आती है जैसे. बट जस्ट टू स्टार्ट रैपिंग दिस टॉपिक अप, और जो इनर मोस्ट जो है, जैसे संधिनी हमने कही, समवेद कही, जो संधिनी इज द प्रकृति, राइट, द नेचर, एवरीथिंग अराउंड अस. अपने जो टुकड़े इकट्ठा किए हैं, घर द्वार ये वो सब, शरीर तक, दिस इज संधिनी इंफीरियर. शरीरी जो है, देही जो है, क्षेत्रज्ञ जो है इस अध्याय का, हम जो है, that is far superior, which is the Samaved, and still far superior to that is something called Alhadini. इसकी अल्हादिनी नाम की शक्ति है. अल्हाद शब्द सुना होगा संस्कृत वर्ड है. अल्हाद मतलब आनंद, जो प्योर प्रेम से, शुद्ध प्रेम से जो आनंद मिलता है. When someone loves you purely, completely selflessly, जैसे माँ बच्चे पर प्रेम करती है, या पति पत्नी पर, या प्रियतम प्रेयसी पर, अपने लिए जब कोई नहीं करता, खाली आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई वांट टू सी यू हैप्पी, आई वांट टू मेक यू हैप्पी, आई लव इट व्हेन यू आर हैप्पी, देयरफॉर आई वांट टू डू दिस, है ना. उसमें जो हल्का सा थोड़ा सा लगता है, उससे जो वो जो भावना आती है उसे आह्लाद कहते हैं. जस्ट जस्ट द फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट, पूर्णत्व की भावना, प्रेम की जो भावना आती है, वो उसकी अंतरंग उसमें से है. और उसका जो कोर है, when that gets personified. So मेरी शक्ति मेरे बिना कैसे रहेगी, जहाँ एक शक्तिमान है और शक्ति है ना. मेरी बोलने की शक्ति जो है, अभी मेरी विचार करने की जो शक्ति है, पहले जब मैं साउथ राइडिंग में था तब वो भी उधर थी मेरे साथ. अभी मैं यहाँ है तो मेरे यहाँ आ गया, वो गाड़ी में नहीं भूल गया, ग्लव बॉक्स में नहीं रह गया, मैं जिधर गया उधर गया. शक्ति मत के साथ शक्ति आ जाती है ना, कम ज्यादा नहीं हो गई. और शक्ति अपने आप नहीं टंगती, सपनी कई शक्ति उधर है, उसको बुलाना, फोन करना, जल्दी आ जाना, समय हो रहा है, लोग सब राह देख रहे. ऐसे भी नहीं होता. मैं हो तो मेरी शक्ति है, लेकिन शक्ति अपने आप से, जहाँ शक्ति मत है, द एनर्जी एंड द एनर्जेटिक, in English, the energetic and his or her energy, they're one and yet different. I am not just my energy, the energy belongs to me. मेरी शक्ति है, लेकिन मेरे में शक्ति से और भी ज्यादा है ना. उसका इंटरप्रिटेशन भी है. but we're one and yet different. So ये जो मैंने शुरू में कहा था, अचिंत्य भेद अभेद, भेद में अभेद, अभेद में भेद, identity in difference. My energy, my potency, and I are the same, because wherever I am, my energy is, and I'm meaningless without my energy.
So we are, in that sense, we are identical, makes sense, but yet we're different. It's not like that's all there is to me in the energy. तो इस पर बाद में घर में जाके ध्यान करना, तो उसकी जो अंतरंगा शक्तियों में से सबसे कोर है, सबसे प्योरेस्ट, स्ट्रांगेस्ट, जो उससे इनसेपरेबल है, जैसे मेरी शक्ति, मेरे हृदय की भावनाएं मेरे से इनसेपरेबल है. There is no way that any surgeon or any of you or anyone can separate the innermost deepest feelings अपने हृदय की. मेरे से अलग नहीं कर सकते. मर जाऊंगा तब हो गए तो हो गए, तब तक नहीं. ऐसे उसकी जब, इसलिए वो जहां भी जाता है भगवान, जहां भी जाता है उसके अंदर की भावना उसके साथ होती है. वो शरीर लेता है तो वो भी शरीर रूप में आती है. वो कृष्ण बन के आया तो वो राधा बन के आई. एंड दैट्स आह्लादिनी. राधा जो है वो उसकी इनर मोस्ट कोर आह्लादिनी स्वरूप, आह्लादिनी शक्ति. इसलिए वो खाली देना चाहती है, खाली प्रेम करना चाहती है. जो हम जिसे नारायण भगवान, विष्णु भगवान कहते हैं, इसको पूजा करते हैं, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गुरुदेव. उसमें 60 कलाएं कहते हैं, 60 एस्पेक्ट्स, डायमेंशंस टू इट. ये राम अवतार लेकर कहते 16 उसमें से लेकर आए थे बाहर होकर के. वो ज्यादा ज्यादा प्रकट नहीं करना था भगवान पना अपना, लिमिटेड दिखाना. मर्यादा पुरुषोत्तम कहते उसको, लिमिटेड लेकर के आए थे. और जो सबसे बड़े में बड़े महापुरुष होते हैं आज तक जो भी हमने सुने हो गए मानव शरीर में, उनमें 8 कला थे. 8, half of what Ram had. The greatest man, quote unquote, that would have walked on this planet would be about have like half capable of Ram जैसे. And generally humans are considered, if you're human, having 4 dimensions, 4D, 4 aspects to it. ये तो हम लोग 3D में ही फंस गए हैं. ये 3D शरीर है ना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसमें कितने लंबे हो, कितने मोटे हो, कितने में से. तो we have the 4th dimension which is inside of us. तो नारायण भगवान जो क्रिएटर जो है, सुप्रीम ऑलमाइटी, उसको 60 डायमेंशन थी. और कृष्ण जो है, ये नारायण जो है 60 में, उसकी कहते हैं ऐश्वर्य प्रधान है, इसलिए उसका वैकुंठ है. ये ब्रह्म संहिता में आते चिंतामणि प्रकर सदमशु, उसके पत्थर पत्थर चिंतामणि ऋषि, हर वृक्ष उसके वैकुंठ में कल्प वृक्ष है. हर गैया, गाय जो है कामधेनु है, हर स्त्री लक्ष्मी है. एक लक्ष्मी की वजह सारा संसार है, हर स्त्री उसमें लक्ष्मी. ऐसा उसका ऐश्वर्य है. तो ऐश्वर्य स्वरूप है. और इसलिए द्वारिका में भी द्वारिकाधीश, सारा ऐश्वर्य था वो नारायण का. लेकिन कृष्ण जो है वृंदावन का, ये मैं अपने वालों के लिए बात कर रहा हूँ, अपन वाले, अपना क्लब जो है, प्रेमियों का, पागलों का जो है ना. कृष्ण कन्हैया जो है वृंदावन का गोपाल बाल जो है, उसमें 4 कला और है. नारायण को देख के आज तक किसी ने कहा कितना मीठा है, ओ इसको चिपक लूं, झपकी मार लूं. नारायण कभी बांसुरी बजाते नहीं देखे. नारायण ने कोई ऐसे कोई कुछ नहीं है, कभी अंगुली पे पहाड़ उठा लिया, या कभी नाग पे नाचना शुरू कर दिया, या किसी को कुछ मटकी फोड़ दी, किसी का दही छोड़ लिया, चुरा लिया, ऐसा नहीं किया. या तो उसमें जो एक वेणु माधुरी, रूप माधुरी, रस माधुरी और लीला माधुरी, ये 4 जो है इसके सर के ऊपर चढ़ के, कृष्ण नारायण के सर पे ऊपर के और 4 उसको बताता है, अरे ये रह गया ना तेरे, कर गया कि तेरे इतना, ये 4 हाथ लेकर सामने आ जाए तो हाथ तो जुड़ जाए, प्रणाम दंडवत कर दे, लेकिन डर भी लगे कि उसको जाके एकदम झपकी ना मार ले. लेकिन वो जब सामने आ जाए घंघराले बाल वाला 16 साल का, तो जो भी हो, बड़े हो छोटे हो, जैसे भी, उसको जाके चिपकना, उनके मेरा मेरा कान्हा है, मेरा कन्हैया, मेरा कृष्ण है. उसको प्रेम प्रेम हो जाता था देखते ही से, जैसे उस पे ना उसके रूप माधुरी थे, बड़ा मीठा, बड़ा सुंदर. और उसके गुण जो लीला है उसके अलग अलग प्रकार के, ऐसे ही उसके वेणु, उसकी बांसुरी की माधुरी थी. तो ऐसे 4 प्रकार के. इसलिए वो कृष्ण के साथ राधा हमेशा थी. प्रश्न एक बार पिछले बार किसी ने किया था कि कृष्ण ने राधा को पीछे क्यों छोड़ दिया, वृंदावन में गए, रुक्मिणी से ब्याह क्यों कर लिया. कि रुख द्वारका में जो था वो नारायण स्वरूप में थे. ऐश्वर्य दिखाया, शक्ति दिखाया, सामर्थ्य दिखाया ना उसमें. और लक्ष्मी जो है वो रुक्मिणी है, लक्ष्मी जो है वो सीता है. राम के साथ सीता आई, कृष्ण के साथ रुक्मिणी आई, जैसे नारायण के साथ लक्ष्मी थी. राधा जो है वो उनके उसके और अंदर वाली है. वो तभी आती जब ये 4 उसके ऊपर वाली कलाएं जो प्रकट होती है. और इसलिए राम के साथ राधा नहीं थी. राम ने एक पत्नी व्रत किया था. राम के साथ उसकी आह्लादिनी शक्ति थी, उसने प्रकट नहीं होने दी कभी. उसने प्रकट नहीं करी तो वो भी प्रकट नहीं हुआ, ऐसा ना. तो ये आह्लादिनी शक्ति से हम जुड़े, वी आर टेदर्ड. दिस लास्ट थिंग आई वांट टू से, I'm surprised you haven't stopped me.
The last thing, I'll keep going, you know it. तो लास्ट थिंग आई से कि जैसे वो स्पेस में एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो स्पेस स्टेशन के सुधारने के लिए बाहर निकलते हैं ना, तो देखा होगा डॉक्यूमेंट्री में दिखाते हैं, वो स्क्रू टाइट करते हैं, कुछ ठोक ठाक करते हैं जो भी, और फिर 45 मिनट्स बाहर रुक के फिर अंदर में आ जाते हैं। लेकिन उनको एक थोड़ा सा बांधा हुआ होता है, टेदर्ड होते हैं, दे आर टाइड टू द मदरशिप, टू द स्पेस स्टेशन, ताकि वो कहीं ना चला जाए। या तो बच्चा निकलता है तो वो नाभि से जुड़ा होता है ना, ऐसे ऐसे ही ये सिद्धांत हमारे लिए कहाँ है। तो वही जीवात्मा जो है, जो बीच वाली तटस्थ शक्ति, जो है तटस्थ मतलब क्या है, बीच में तट पे जो ना आधा इधर का है ना उधर का है, धोबी का है ना, कि अरे मैं अंदर वाला हूँ या बाहर वाला हूँ। जब हम बाहर की ओर बाहर 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 जाते हैं, खाना पीना नाचना गाना धूमधाम, न्यू ईयर्स पार्टी 12 बजे हो तब तक, तो उसी में फंस रहते, थक जाते हैं, अब फिर से वही वही करना पड़ता है, दम जाते हैं, अंत में मर जाते हैं। जितना अंदर जाते हैं, 20 मिनट 24 मिनट भी अगर अंदर जाते हैं, तो उसके उल्टा होता है, विश्राम मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, कुछ नहीं किए बिना शांति मिलती है, कोई वेकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा लगता है इससे अच्छी तो बड़ी वेकेशन हो ही नहीं सकती, इतना शांति इतना अच्छा क्यों लग रहा है करके। ये जिसने भी अनुभव किया, जिसने भी ध्यान किया, सभी का अनुभव है। जितना वैभव, जितना ऐश्वर्य अपने अंदर जिधर है उधर है, उसके करोड़ों गुना बाहर नहीं है, कितनी भी वेकेशन लेके नहीं हो सकता। इनफैक्ट कितने भी वेकेशन से आने के बाद ध्यान करके देखे तो ऐसा ही अनुभव होगा। इट्स फ्री ऑफ चार्ज, एंड इट्स फ्री ऑफ चार्ज। और जहाँ वहाँ है, जैसे दैट इज बिकॉज वी आर टेदर्ड, हम लोग बांधे हैं हल्के से। जीवात्मा बाहर लटक तो रही है, ढूंढ तो रही है, बट लेकिन मैया के साथ टेदर्ड बाय जो चैतन्य, जो चिदानंद, जिसे कहते हैं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, सेटिंग इज इन शिव, मंगल में, मांगल में, पवित्र में। वो आनंद से, चित्त जो है, चैतन्य जो है, हम जो है, वो आनंद से बंधा हुआ है। चिद आनंद रूपो, माय बैंड, माय इंक्लिनेशन, माय प्रेफरेंस इज ऑलवेज टुवर्ड्स आनंद। आनंद इज इनसाइड। जब मीठा खाते वो, जब हमारे अंदर हम अपनी जीवा पे रखते तब मीठा होता है। तुमने कितना भी बताया मीठा है, तब तक मैं नहीं मानूंगा जब तक मेरे को अपने को मीठा नहीं अनुभव होगा। वो तभी होगा जब मेरे अंदर में जाने लग के प्रारंभ होगी। ऐसे ही द आनंद से जीवात्मा हमेशा आनंद चाहता है, आनंद ही चाहता है, आनंद ही चाहता है, आनंद ही चाहता है। क्यों? क्योंकि आनंद से बंधा हुआ है, आनंद की ढूंढ रहा है। लेकिन ढूंढ रहा है बाहर, इससे आनंद, उससे आनंद, उससे आनंद, उसे नहीं मिल रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, थक रहा है, मर रहा है, गाली दे रहा है, रो रहा है, सब हो रहा है। इसलिए कहा कि अरे तू, लेकिन जिससे बंदा आनंद से, तू बंदा आनंद से बना है, देख तो अंदर तो मुड़ के देख। इस तो कितना मंगल ही मंगल होगा उस बहाना है, शिव चिदानंद रूप शिवो हम शिव। दैट वाज द एसेंस ऑफ दिस श्लोक। मैं खाली हिंदी में पढ़ के बंद करता हूँ आज का, अब तक ही यू विल फील justice being done. Last time we done 28. समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम, नहीं नस्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। पिछली बार था, क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और आज का श्लोक था जो मैंने हाईजैक कर लिया, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानम् अकर्तारं स पश्यति। दिस वाज 29 चैप्टर 13। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को मात्र अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। सो we're just witnessing this, we're just experience, एक खाली अनुभव कर रहे हैं हम। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं चिपक जाए, बहुत ज्यादा नहीं फिसल जाए, बहुत ज्यादा नहीं घिसे जाए। बहुत जाता है काम जितना, इसका उपहास करे, इससे घृणा भी ना करे, हेट्रेड भी नहीं, not hating whatever is happening, not absolutely salivating at the sight of it, not passionately like, ठीक है इसको और देखे। इसलिए लास्ट टाइम जो मैंने कबीर जी के श्लोक कहे थे, वही कह के फिर से कबीर जी ने कहा था ना, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। तो ये जो साधुवाद तभी है जब साधुन को ऐसा चाहिए, दुख है दुखावे नहीं, पान फूल छेड़े नहीं, बैठे बगीचा माही। ये बगीचा है, इधर से भागना नहीं है, ये सब छोड़ के बेकार है सब, तुम क्या फालतू लोगों करके भाग नहीं जाना है। ना ना ना, बैठे बगीचा माही, खाली
पान फूल छेड़े नहीं, छेड़छाड़ ना करें। तो फिर अपने आप साधुपन, क्योंकि वी आर सेट इन गुडनेस, वी ऑलरेडी हैव इट, कहीं कुछ लाना नहीं कहीं से, वी आर दैट ना, तत् त्वम असि, अहम ब्रह्म अस्मि, वी ऑलरेडी आर। क्या मिलाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, just have to go back and just stay, remain myself। जो बदल गए उससे वो कुछ नहीं करना है, जितनी आसान हो सकती है। दैट्स द न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू, प्रणाम, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। Bobby, we start with the best one. पहले आप